Standard 10th Mathematics Part 2 Similarity Angle Bisector Theorem Part 4 of Exercise 1.2. Here we have seen angle bisector theorem in the last video. I'll revise this once again. Here if you have an angle bisector and it bisects the opposite side, then the ratio AE upon EB is equal to AC upon CD. How to prove that? You are given triangle ABC. Angle C is intersected by segment AB in point E. Construction: draw a line parallel to CE. This is your line CE. Draw a line parallel to CE passing through point P. Extend AC so as to intersect it at point D. AC को extend करो. BD is parallel. Wherever they meet, write the name as D. Now, how to prove it? This is your triangle ABC. You will draw a line parallel to CE. After drawing a line, we'll extend AC. It meets at D. Then you get angle ACE. ACE is equal to CDB. Why? Because they are corresponding angles. They are corresponding angles. And already we know that these two are congruent angles because of the angle bisector. Now, BC is the transversal. BC is the transversal. Because of that, we will get two angles which are equal, that is ECB. ECB, this angle, and CBD, this angle. CBD, this angle. These two are congruent because of, again, your alternate angle test. But we know that these two are congruent. That is why we say that this angle is equal to this. This angle is equal to this. But these two angles are also equal. Hence, the base angles, that is angle CBD and CDB, are also congruent. From 1, 2 and 3. Now, this triangle BCD, triangle BCD, base angles are congruent. So, these two are equal. When these two are equal, we write it like that. Check this out. These two angles are equal. In triangle CBD, segment CB is congruent to segment CD. अब ध्यान से समझिए ये हुआ क्या है. ध्यान से समझिए ये हुआ क्या है. आपको दिखाना है AE upon EB is equal to AC upon CB. आपने किया प्रूव. ये दोनों एंगल इक्वल हैं. ये जो एंगल है वो इसके बराबर है. सिमिलरली ये एंगल जो है इसके बराबर है. सो अल्टीमेटली ये दोनों एंगल इनके बराबर है. दैट मीन्स all the four angles are equal. But when you see this red triangle, base angles are equal. That is the reason opposite sides are congruent. Red triangle is isosceles triangle. In isosceles triangle, two sides are congruent. That means CB is equal to CD. CB is equal to CD. Now, what we have in this big triangle ABD? In big triangle ABD, CE is parallel to BD. Therefore, AE upon EB is equal to AC upon CD. Done. In triangle ABD, EC is parallel to BD. Therefore, these two sides are parallel. Hence, we can apply the basic proportionality theorem. That is, CE is parallel to BD. That means AE upon EB is equal to AC upon CD. But CD is also equal to CB.
So we will replace this CD by CB. The moment you replace CD by CB, you get the result required AE upon EB is equal to AC upon CB. सिंपल थ्योरम है, बार बार सुनिए, आ जाएगा. इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 3 मार्क के लिए लिखने को आता है. ज्योमेट्री खूबसूरत है, और ज्योमेट्री खूबसूरत इसलिए है बिकॉज सेम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आप फिर से अलग तरीके से प्रूव कर सकते हैं. यहाँ पे एक सेट फॉर्मेट नहीं है, जिस भी तरह से आप समझें उस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं. अब इन दो ट्रायंगल को देखिए. AD इज द एंगल बाइसेक्टर. हमारा एम है BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC. सो व्हाट इज गिवन टू अस? गिवन इन ट्रायंगल CAB रे AD बाइसेक्ट्स एंगल A. AD जो है वो A एंगल को बाइसेक्ट करती है. प्रूफ क्या करना है? AB अपॉन AC. AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ सेगमेंट DM. ये DM ड्रॉ करेंगे आप, परपेंडिकुलर टू AB एंड DN परपेंडिकुलर टू AC. किस प्रकार की बनेगी? आपको A', N', C मिलेगा, A', M' मिलेगा. आपने 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री में देखा होगा ये बिटवीननेस. अगर नहीं देखा है तो प्लीज 9th के वीडियोस पे जाके देख लीजिएगा, लिंक शेयर कर देंगे हम. अब यहां पर आप देखेंगे कि DN जो है, ये DN जो है और DM ये दोनों हाइट है. किसकी हाइट है? इस ट्रायंगल की हाइट है जो पिंक कलर का दिख रहा है, और DM हाइट है जो येलो ट्रायंगल दिख रहा है उसकी. सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ABC, बड़ा ट्रायंगल ABC, D इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A. अब अगर एंगल बाइसेक्टर का डेफिनेशन आपको याद होगा, इट इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच वाज आल्सो कॉल्ड एज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द आर्म्स. इसलिए DM इज इक्वल टू DN. हमें मिलता है DM इज इक्वल टू DN. अब फिर से डायग्राम देखते हैं. यहां हमें मिला है DM और DN इक्वल. अब एंगल बाइसेक्टर है आपके पास, so these two angles are equal. You got another thing, that is DM, which is also equal to DN. Now see the details. DM is equal to DN. Every point on the angle bisector of an angle is at equal distance from the side of the angle. That is definition of angle bisector, because angle bisector is a locus. आपने 9th में पढ़ा है. अब आप देखेंगे दो ट्रायंगल. एक ट्रायंगल है BAD और दूसरा ट्रायंगल है CAD. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, that is ये ट्रायंगल, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD. मतलब ये ट्रायंगल की एरिया अपॉन ये ट्रायंगल की एरिया इज हाइट DM into AB AC into DN. अब हमें मालूम है कि DM और DN इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से लिखा है. कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ये वाले एरिया का ट्रायंगल का जो एरिया है, अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू AB अपॉन AC फ्रॉम 1 and 2. अब फिर नेक्स्ट देखिए. अब ये हमने ले लिया BC बेस. हमने क्या ले लिया? BC बेस. अब इस BC बेस पे अगर हम हाइट डालें, राइट, तो ये हमारा डॉटेड लाइन हाइट डाला. अब चूंकि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है इसलिए डॉटेड लाइन से. अब A B D का हाइट कौन सा रहेगा? ये ब्लू लाइन. और A D C का हाइट कौन सा रहेगा? ये ब्लू लाइन. मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो बने हैं इनकी हाइट सेम है. तो हम फिर से लिखते हैं
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। कौन सा ट्राइंगल? ये वाला साइड का ट्राइंगल और ये वाला साइड का ट्राइंगल का एरिया का रेशो विल बी इक्वल टू रेशो ऑफ देयर बेसेस बिकॉज देयर हाइट इज सेम। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था रेशो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट। इट विल बी इक्वल टू द रेशो ऑफ बेस इफ हाइट इज सेम। सो बोथ द केसेस आपने हाइट सेम ली। फर्स्ट केस में ये दोनों हाइट थी, सेकेंड केस में ये हाइट है, तो आपको मिला ये दोनों साइड इक्वल मिलने की वजह से आपको मिलता है AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन CD एंड दिस इज व्हाट वाज टू बी प्रूव्ड। सो ज्योमेट्रिकली आप एंगल बाइसेक्टर को कई तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। ये एक और तरीका आपको दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम साइड ऑफ द एंगल। याद रखने की चीज है, ये हमेशा याद रखिएगा कि ये अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों लेंथ को अगर आप देखेंगे तो ये हमेशा इक्वल होगी, दैट इज MP और MN इक्वल होगी। एंगल बाइसेक्टर अगर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म इज ऑलवेज इक्वल। बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को, ये भूलने वाली चीज नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, कहीं पर भी यूज होगी। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज में से। एंगल इज गिवन टू यू PRQ। R एंगल को बाइसेक्ट किया है RS ने। दिस इज द सिनेरियो गिवन टू अस। अब क्या दिया है? PR इज गिवन टू बी 15, राइट? एंगल बाइसेक्टर दिया है SR। ये दोनों साइड्स हमको दिए हुए हैं। PR इज गिवन टू बी 15, RQ इज गिवन टू बी 20, RQ is given to be 20, PS is given to be 12. So ultimately what we get is, ये values put कर दीजिए। हमेशा याद रखिए ऐसे values substitute कर देना, डायग्राम में ही लिख देना, तो हमको आसान हो जाता है। अब देखिए PR 1 2 3 4, 1 2 3 4। कैसे लिखते हैं इसको? PR अपॉन RQ इज इक्वल टू PS अपॉन SQ। PR अपॉन RQ इज इक्वल टू PS अपॉन SQ। ऐसे याद रखना। 1 2 1 2 1 2 1 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। उल्टा लिखा तो चलेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी डायग्राम में लिख के रखी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा 16। सिंपल क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक्टिविटी दी है आपको। अब उसने क्या कहा है, ये एंगल बाइसेक्टर है और उसका क्वेश्चन क्या है, AB अपॉन BC। अब ध्यान से देखिए, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। अब ये कैसे सॉल्व होगा? इसमें दो चीजें एक साथ डाल दी गई है। ध्यान से देखिए, ED दिया हुआ है पैरेलल BC के, मतलब आप BPT लगाएंगे, और एंगल बाइसेक्टर दिया है तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी लगाएंगे। सिंपल है, शांति से देखिएगा, आराम से आएगा। ये आपके दो साइड्स हैं, फिर उसने दिया आपको ये वैल्यूज AE अपॉन EB। अब सॉल्व करने जाएंगे। इन ट्राइंगल ABC, रे BD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। BD जो है वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल B है, इसकी वजह से हमको मिलेगा AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। आपने बस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखना है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे,
इन ट्रायंगल एबीसी DE is parallel to BC. वापस देखिए, इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC. That means what? AE upon EB is equal to AD upon DC. अब यहां ध्यान से देखिए, ये भी AD upon DC है, ये भी AD upon DC है. इसको नंबर 1 रखा, इसको सेकेंड नंबर रखा, राइट? आप वैल्यूज डाल दीजिए. AD upon BC is equal to AE upon EB. Why? Because both are equal to AD upon DC. Done. Numerical easily solve हो गया. From 1 and 2 you get the required result. अब ये क्वेश्चन देखिए. सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. थर्ड क्वेश्चन. ट्रायंगल दिया है MNP. NQ जो है वो एंगल बाइसेक्टर है. अब वैल्यूज दी हुई है. एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब उसके ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे. अगर ऐसा हुआ तो आप क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. 1 2 1 2. चलिए लिखते हैं. अब जैसे ही वैल्यूज लिखी हुई हैं आपने सारी वैल्यूज लिख के रख दी. उसके बाद आपने लिखा इन ट्रायंगल MNP NQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल N. NQ जो है वो N एंगल का बाइसेक्टर है. इसका मतलब PN अपॉन MN इज इक्वल टू MQ अपॉन QP. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ गया. अच्छा, मैंने हमेशा बोला है ये न्यूमेरिकल्स ओरली सॉल्व होते हैं. अब देखिए 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, ये 2.5 दिख रहा है, ये 3.5 आएगा. अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो न्यूमेरिकल देखते देखते आप आंसर निकाल के बैठ जाएंगे. हमेशा याद रखिए, न्यूमेरिकल देख के आंसर ऐसे ही निकल जाता है ओरली. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. फिर से दिया QP यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर. एंगल बाइसेक्टर दिया है. एंगल बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल रहेंगे. वैल्यूज दिया है. इन ट्रायंगल MNP NQ is the bisector of angle N. Therefore PN, अब ये 1 लिया, 1 upon 2, 1 upon 2, numerator upon denominator, numerator upon denominator, 40 upon 25 is equal to QP upon 14. अब नेक्स्ट देखिए, सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आपको मिलेगा 22.4. इट्स ओके, मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल ओरली सॉल्व हो जाते हैं. कई बार नहीं समझ में आता, इट्स ओके, चलेगा. बट कोशिश कीजिएगा कि न्यूमेरिकल्स में नंबर्स को ध्यान से देखें ताकि आपको न्यूमेरिकल ओरली सॉल्व करते भी आ जाए. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैंसलेशन करके, आपको ये आंसर आराम से आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल. फिर से वैल्यू दी हुई है. एंगल बाइसेक्टर दिया है मतलब दोनों एंगल्स इक्वल हैं. वैल्यूज निकाल दीजिए, सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कीजिए. इन ट्रायंगल LMN MT इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल. MT बाइसेक्टर है, इसका मतलब LM अपॉन MN, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ये तो यहां ही क्लियर हो जाता है. आप काट के देखिए, 5 3 कट कीजिएगा, 4 आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लीजिए. ठीक है, आप ओरली सॉल्व करना सीख रहे हैं. गुड. वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आंसर आया 4.8. डन. न्यूमेरिकल एक एक स्टेप प्रॉपर्ली लिखना है. लास्ट आंसर अगर लिखा है फाइंड LT, आपको फाइंड LT करना है. ऐसी जगहों में
कई बार क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाता है। LT की जगह वो यहां लिखेगा फाइंड LN। LT की जगह क्या लिख देगा? फाइंड LN। आप LT निकाल के खुश होकर वापस आ जाएंगे, बट क्वेश्चन था फाइंड LN, आप LT निकाल के बैठ गए। तो ऐसे टाइम में अलर्ट रहिएगा। LT है तो LT, LN है तो LN ऐड करके आ जाएगा। LT आपको 4.8 आया, LN होता तो 4.8 प्लस 8 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC, BD bisects the angle ABC. Side AB is X. Side AB is X. BC is X plus 5. AB is X. This is X plus 5. AD is also given to you. Angle bisector बनाइए, वैल्यूज लिखिए डायग्राम में प्रॉपरली। अब ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, 1 2 3 4, AB न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू AD अपॉन DC। आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। x into x becomes x square, x into 2 becomes 2x, x plus 5 into x minus 2, सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा 2x is equal to 3x minus 10, बोथ द साइड x स्क्वायर कैंसिल हो गया, x is equal to 10 आ गया। क्वेश्चन ने क्या पूछा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप यहीं छोड़ देंगे, बट एग्जाम में क्या होगा? कई बार क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया जाता है। आपको x की वैल्यू पूछने की जगह वो लिख देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द 3 साइड्स, और फाइंड AB, BC, AD और CD, कुछ भी एक पूछ लेगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड हॉट्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। नथिंग न्यू, सेम क्वेश्चन आते हैं। ओके, 11th न्यूमेरिकल देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, रे BD bisects angle ABC and CE bisects angle ACB। ट्रायंगल देखिए, ABC, BD bisects angle ABC, CE bisects angle ACB. Also it is given that AB is congruent to AC. That means these two red and blue lines are congruent. Then prove that ED is parallel to BC. ED is parallel to BC. अब थॉट प्रोसेस कैसा जाएगा? आपको दिखाना है ED is parallel to BC। कैसे दिखाएंगे? आप बोलेंगे ED is parallel to BC का मतलब होगा AD अपॉन DC is equal to AE अपॉन EB। अगर आप ये चीज दिखा पाए तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज न्यूमेरिकल स्टार्ट होते होते ही आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि मुझे दिखाना है AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, AD अपॉन DC इज इक्वल टू AE अपॉन EB। देन बाय कॉन्वर्स ऑफ BPT ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे, है ना? तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया क्या है? BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। आप क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे BD। अब एंगल बाइसेक्टर है, मार्क कर देंगे उसको। देन यू विल अंडरस्टैंड AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC। आपको फर्स्ट पार्ट मिला। अब आप सेकेंड में क्या करेंगे? सेकेंड में आप फिर से लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ CE दिया है बाइसेक्टर, तो आप लिखेंगे CE। डायग्राम ड्रॉ कीजिए। CE इज द एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आपको मिला AC अपॉन BC, AC अपॉन BC is equal to AE upon EB, AE upon EB।
अब ये ध्यान से आप जब देखेंगे इनको तो आपको पता चलेगा कि हमें प्रूव करना है AD अपॉन DC, जो हमें यहाँ दिखाई पड़ता है, इज इक्वल टू AE अपॉन EB, जो हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। अब ये दोनों को इक्वल दिखाना है तो हम कोशिश करेंगे कि हम इनको इक्वल दिखा दें। अब ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दोनों का BC है, तो हमारा डिनोमिनेटर तो सेम है। अब सोच के देखो कि हमारे पास न्यूमरेटर के बारे में कुछ मालूम है क्या? यस, आपको दिया है AB इज इक्वल टू AC, लिख दीजिए। बट AB इज इक्वल टू AC, थर्ड पॉइंट डाला। देयरफॉर इन दोनों के साथ थर्ड पॉइंट यूज करते हुए आपको फोर्थ पॉइंट मिलेगा, दैट इज AB अपॉन BC, राइट। AC, यहाँ पे जो AC है इसको हटाकर AB लिख दिया। AB अपॉन BC is also equal to AC upon BC because AB is equal to AC, तो आपने लिखा AB अपॉन BC is equal to AE अपॉन EB। उसी तरह से आपको जैसे ही ये चीज मिल गई, ये दोनों साइड इक्वल हो गए, तो ऑटोमेटिकली आपका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। Therefore you get AD upon DC is equal to AE upon EB। न्यूमेरिकल को पहले समझो, ज्योमेट्री समझना है, कलर्स यूज करो और देखो प्रूव क्या करना है। अगर आप इसको डायरेक्टली करने जाओगे हमेशा ज्योमेट्री डिफिकल्ट हो जाएगी। इसको देखो, यहाँ पर 2 मिनट सोचो कि मुझे करना क्या है, टारगेट सेट करो। जिंदगी में भी ऐसा ही है ना, अगर आप ऐਵੇਂ ही चलते चले जाएंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। पर अगर आप एक टारगेट सेट कर लेंगे, गोल सेट कर लेंगे, मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ऑटोमेटिकली आप उसी से काम करना स्टार्ट करेंगे। ED इज पैरेलल टू BC दिखाना था, ED इज पैरेलल टू BC दिखाना था। हमने गोल सेट किया, हमें BPT तक जाना है। कॉन्वर्स ऑफ BPT अगर हम पहुंच गए तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। हमने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाया पहली बार, फिर दूसरी बार भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाया। दोनों में हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम आ गया था, न्यूमरेटर हमको सेम करना है। हमने AB और AC इक्वल है, न्यूमेरिकल में देख लिया। अल्टीमेटली हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। अब आपने यहाँ लिख दिया, आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, मार्क्स कट जाएंगे, लास्ट आंसर लिखना जरूरी है। Therefore, ED is parallel to BC by converse of basic proportionality theorem. Thank you. Hope आपको 1.2 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा। आप लॉकडाउन के टाइम में ये लर्निंग, ये टीचिंग एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, कमेंट लिखिए, सो दैट हमें अपनी मेहनत का फल मिले, हमको समझ में आए कि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझ में आ रही है। थैंक यू।